children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is words and sentences. Think. Rearrange the following words to make a sentence. अब जो आपको words दिए गए हैं ना, the, Gary, song, singing, are, Simon and, आपने क्या करना है, आपने इन words को ढंग से arrange करना है ताकि एक proper sentence बन जाए. कैसे? Gary and Simon are singing the song. Now let's do this. Use the group of words given below to make as many sentences as you can. जैसे पहला है his father wrote the song. Second में she wrote the book. The teacher sang to play guitar. Sandra listened the horse. Timothy learned to them. आपने क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को आपने ऐसे लेना है कि आप प्रॉपरली 5 सेंटेंसेस बना सकें. Now let's read this. A sentence is a group of words that is complete in itself. It contains a subject and a predicate. It can be a question or a command. For example, the dog is wagging its tail. तो sentence क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको जब हम लिखते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, और उस सेंटेंस में यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में कंप्लीट है, पूरी सेंस बनाता है, उसमें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस. अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है. तो एग्जाम्पल क्या दिया था? द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल. नाउ लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. So what are the different types of sentences? We have declarative sentence, then we have interrogative sentence, then we have imperative sentence, and we also have exclamatory sentence. So let us begin with declarative sentence. A declarative sentence makes a statement and ends with a full stop. मतलब जहाँ पे कोई सेंटेंस एक स्टेटमेंट दे रहा है और एंड में सेंटेंस के फुल स्टॉप लगता है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द गेम. देयर इज अ हाउस ऑन द हिल टॉप. नाउ लेट अस लुक एट द imperative sentence. An imperative sentence gives a command or makes a polite request. जिस सेंटेंस में या तो कोई कमांड दी जा रही है या कोई एक रिक्वेस्ट करी जा रही है, उसे हम कहते हैं imperative sentence. For example, go back to your seat. You will have to open the door. Now we come to exclamatory sentence. An exclamatory sentence shows strong feelings. It ends with an exclamation mark. मतलब जिन sentences में कोई भी एक बड़ी strong feeling हमें show हो रही है और end में हम exclamation mark लगाते हैं, वो हमारे होते हैं exclamatory sentences. For example, run for your life as the elephants are charging ahead. Look, we found the castle at last. Now we come to the interrogative sentences. An interrogative sentence asks a question and has a question mark at the end of it. तो जो interrogative sentence है वो हमसे कोई एक question पूछ रहे हैं और end में question mark लगता है. Examples क्या है? Why is he looking at us angrily? How did you spend your summer holidays? Tell. Write down the words given below on small bits of paper. Make sentences with them and tell each other. तो ये जितने आपको words दिए गए हैं, she, Radha, fun, went, had, park, I, baked, cake, is, the, to, mummy, to, Uncle Sam, like, right, he, must, yesterday, came, we, finish, sand, this, fast, down, go, play, rushed, kitchen. तो इन सारे वर्ड्स को अलग अलग पेपर के छोटे छोटे पीसेस में आप लिखिए. अब इन वर्ड्स को यूज़ करके आप सेंटेंसेस बनाइए और एक दूसरे को बताइए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, मम्मी बेक्ड अ केक. इस तरह से कितने अलग अलग वर्ड्स हैं, कितने अलग अलग उनसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं.
Now let's write rearrange the following words to form sentences. जो आपको words दिए गए हैं उनको आप ऐसे अरेंज करें कि आप उनसे प्रॉपर सेंटेंस बना सकें. तो अगर हम ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें, beating, help, friends, my, our, me, तो इससे हम एक प्रॉपर सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? Help, my friends are beating me. इसी तरह से आपको जो बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं उनको रीअरेंज करें और प्रॉपर सेंटेंसेस बनाएं. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि वो किस टाइप के सेंटेंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, रन मिलिन रन. अब इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस पढ़ें और आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस हैं. नाउ लेट अस लुक एट दिस एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द गिवन पोएम. आपको एक पोएम दी गई है तो हर सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ये क्या है? दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसी तरह से आप बाकी की लाइनें पढ़ें और बताएं कि हर लाइन में किस टाइप का सेंटेंस दिया गया है. नाउ लेट्स एंजॉय दिस. राइट डाउन अ नर्सरी राइम यू नो and identify the kinds of sentences. For example, I sent a letter to my father. On the way I dropped it. Someone came and picked it up and put it in his pocket. तो जब हम पहली लाइन देखते हैं, I sent a letter to my father, ये क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस है. इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करें. अब आप क्या करें कि एक नर्सरी राइम अपने हिसाब से लिखें और उसमें अलग अलग सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें. सो आई होप चिल्ड्रन that this topic on sentences is clear to all and answering questions based on this will now be easy.